ایک دو رفتہ مگر پرسکون گاؤں تھا جہاں صبح کی ہوا میں زیتون کے درختوں کی خوشبو کھلی رہتی اور شام کے وقت سورج پہاڑیوں کے پیچھے یوں ڈوبتا جیسے اللہ کی طرف سے کوئی خاموش پیغام ہو۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں کچی اینٹوں اور مٹی کی دیواروں سے بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا سلیم۔ سلیم نہ کوئی رئیس تھا نہ کوئی عالم، بس ایک عام سا مزدور جس کی زندگی کی کل کمائی 2 وقت کی روٹی اور چند پرانے کپڑے تھے۔ لیکن سلیم کے پاس ایک چیز ایسی تھی جو بڑے بڑے امیروں کے پاس بھی نہیں تھی، دل کی نرمی اور اللہ پر یقین۔ سلیم کی بیوی کا نام شازیہ تھا۔ شازیہ خوبصورت تھی مگر اس کے دل میں شکر کا شکایت زیادہ تھی۔ وہ اکثر کہتی، سلیم، زندگی میں مٹی کٹ تو خالی ہاتھوں کا نام رہ گئی ہے، کاش میں کسی امیر گھر میں ہوتی۔ سلیم بس خاموش رہتا۔ وہ جانتا تھا جس عورت کے دل میں صبر نہ ہو اسے دنیا کی کوئی دولت بھی خوش نہیں کر سکتی۔ سلیم کی سب سے بڑی محبت ایک چھوٹا سا کتا تھا۔ وہ گاؤں کے باہر سے زخمی حالت میں ملا تھا۔ سلیم نے اسے گھر لایا، اس کے زخم صاف کیا اور اسے مٹھو نام دے دیا۔ مٹھو سلیم کے لیے صرف کتا نہیں تھا بلکہ اس کی تنہائی کا ساتھی تھا۔ جب شازیہ سلیم کو تانے دیتی تو مٹھو آ کر سلیم کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتا اور اپنی معصوم آنکھوں سے یوں دیکھتا جیسے کہہ رہا ہو، میں ہوں نا، میں ہوں۔ وہ دن جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت سلیم کام سے واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا اور اس تھیلے میں صرف 2 خشک روٹیاں تھیں۔ شازیہ نے دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولی، یہ کیا ہے؟ بس 2 روٹیاں؟ سلیم، تو کب تک مجھے یوں بھوکا رکھے گا؟ سلیم نے آہستہ سے کہا، شازیہ، آج مزدوری کم ملی، اللہ بہتر کرے گا۔ شازیہ نے روٹی زمین پر پھینک دی۔ اللہ اللہ نہ کرو، مجھے تمہاری غربت سے نفرت ہو گئی ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ سلیم کی کانوں میں جیسے بجلی گونج گئی۔ وہ اکا بکا رہ گیا، کیا کہہ رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے۔ شازیہ نے نفرت سے کہا، یہ گھر، یہ تو ایک قبر ہے اور تم میرے لیے قبر کا کیڑا ہو۔ سلیم کا دل ٹوٹ گیا لیکن وہ چیخا نہیں، وہ لڑا نہیں۔ وہ بس خاموشی سے اندر گیا، اپنی پرانی چادر اٹھائی اور 2 کپڑے، ایک پانی کی بوتل اور ایک چھوٹا سا تھیلا۔ مٹھو فوراً اٹھا اور سلیم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ شازیہ نے طنز کیا، ہاں اپنے کتے کو بھی ساتھ لے جاؤ، کم از کم وہ تم سے وفادار تو ہے۔ سلیم گاؤں سے باہر نکل آیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی اور سلیم کے جسم پر کپڑے کم تھے۔ وہ ایک سنسان راستے پر بیٹھ گیا۔ مٹھو اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، یا اللہ، اگر لوگ مجھے چھوڑ گئے تو ٹھیک ہے لیکن تو مجھے نہ چھوڑنا، میں خالی ہاتھ ہوں مگر میرا دل تیرا ہے۔ مٹھو نے سلیم کے ہاتھ کو چاٹا اور سلیم نے پہلی بار اس رات اپنے دل میں تھوڑا سا سکون محسوس کیا۔ چلتے چلتے سلیم میں پرانے ٹوٹے ہوئے مکان تک پہنچا۔ یہ کسی زمانے میں ایک گودام ہوا کرتا تھا۔ دیواروں پر دراڑیں تھیں، چھت کے کچھ حصے گرے ہوئے تھے اور اندر مٹی کے اور بکریوں کے جالی تھی، لیکن سلیم کے لیے یہ بھی غنیمت تھا، کم از کم رات گزارنے کی جگہ تو تھی۔ اس نے کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کر لیں، ایک چھوٹی سی آگ جلائی اور مٹھو کو اپنے پاس بٹھایا۔ مٹھو نے اپنا سر سلیم کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ سلیم نے اسے سہلاتے ہوئے کہا، مٹھو، دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا مگر تو میرے ساتھ ہے۔ اسی لمحے سلیم کے ہاتھ نے زمین پر ایک سخت چیز کو چھوا۔ وہ چونک گیا۔ اس نے مٹی ہٹائی اور جیسے جیسے مٹی صاف ہوتی گئی ایک لکڑی کا صندوق ظاہر ہونے لگا۔ صندوق پر زنگ لگا ہوا تھا اور اس پر ایک پرانا سا تالا بھی تھا۔ سلیم کی سانس رک گئی۔ سلیم کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ وہ صندوق کے سامنے بیٹھا تھا اور مٹھو بالکل اس کے پاس خاموشی سے جیسے پہرا دے رہا ہو۔ صندوق پر لگا ہوا تالا پرانا تھا، زنگ آلود، ایسا جیسے برسوں سے کسی نے اسے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ سلیم نے ایک پتھر اٹھایا، دل میں عجیب سا خوف بھی تھا اور امید بھی۔ وہ بولا، یا اللہ، اگر یہ کسی کا مال ہوا تو مجھے بچا لینا اور اگر یہ تیرے فضل کا دروازہ ہے تو مجھے سامان لینا۔ پھر اس نے پتھر زور سے تالے پر مارا، ٹھک، ایک بار پھر دوسری بار پھر ٹھک ٹھک، اور آخرکار تالا ٹوٹ گیا۔ سلیم نے آہستہ سے صندوق کا ڈھکن کھولا اور جو منظر اس کے سامنے آیا اس نے سلیم کی دنیا ہلا دی۔ صندوق کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں جن میں سونے کے سکے چمک رہے تھے، چاندی کے دینار اور کچھ قیمتی زیورات بھی۔ سلیم کی آنکھیں پھیل گئی، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے ہلے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مٹھو نے ایک بار ہلکی سی آواز نکالی جیسے کہہ رہا ہو، دیکھو اللہ نے سن لی۔ سلیم نے کانپتے ہاتھوں سے ایک سکہ اٹھایا۔ وہ سکہ اصلی تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔
سلیم کے آنسو نکل آئے. وہ اچانک صندوق کے سامنے سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا, یا اللہ, میں تو خالی ہاتھ تھا, تو نے مجھے وہ دیا جو میں نے مانگا بھی نہیں تھا. لیکن سلیم کوئی بیوقوف نہیں تھا. وہ جانتا تھا اگر وہ ایک ہی دن میں امیر بن کر سامنے آ گئے تو وہ ہمارے سوال کریں گے, اور سوالوں کے ساتھ حسد, سازش اور مصیبتیں بھی آئیں گی. سلیم نے گہری سانس لی اور خود سے کہا, یہ خزانہ نعمت بھی ہو سکتا ہے اور امتحان بھی. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہ سب چھپاؤں گا اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی بدلوں گا. اگلے صبح جب سورج نکلا, سلیم کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا. وہ سوچ رہا تھا کل رات خواب تو نہیں تھا. پھر اس نے صندوق کی طرف دیکھا, وہ وہیں تھا, کھلا ہوا. سونے کی چمک ویسے ہی تھی. سلیم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مٹھو کو گلے لگا لیا. مٹھو, تو میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں ٹوٹ جاتا. اللہ نے تیری وفا کی لاج رکھ لی. مٹھو نے اپنے دم میں لائی خوشی سے سلیم کے ہاتھ چاٹنے لگا. سلیم نے خزانے میں سے چند سکے نکالے, بس اتنے جتنے ایک آدمی کے پاس ہو سکتے ہیں. پھر وہ گاؤں کے بازار کی طرف چل پڑا. اس نے سب سے پہلے ایک مضبوط سا گدھا خریدا, کچھ اچھے کپڑے, کچھ اوزار اور کھانے پینے کا سامان. لوگ حیران ہوئے. ایک دکاندار نے پوچھا, سلیم بھائی یہ سب کہاں سے؟ کل تک تو تم خالی ہاتھ تھے. سلیم نے مسکرا کر جواب دیا, اللہ کی رحمت ہے, مجھے شہر سے ایک مزدوری ملی تھی. لوگوں نے یقین کر لیا کیونکہ سلیم کی باتوں میں جھوٹ نہیں تھا. سلیم واپس اسی ویرانی خزان میں آ گیا, اسی جگہ جہاں صندوق ملا تھا. اس نے صفائی کی, کچھ دیوانیں ٹھیک کی, چھت پر ٹوٹے حصے پر کپڑا ڈال دیا. پھر صندوق کو اٹھا کر ایک کونے میں سے مٹی کے نیچے دوبارہ چھپا دیا اور دل میں کہا, یہ راز صرف میں اور میرا اللہ جانیں گے. مٹھو اس کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ سلیم کے ہر قدم کو دیکھ رہا تھا. سلیم نے سوچا, اگر میں صرف سونا خرچ کرتا رہا تو یہ خزانہ بھی ختم ہو جائے گا. اس نے فیصلہ کیا, میں اس سے رزق کا ذریعہ بناؤں گا, نہ کہ عیاشی کا راستہ. اس نے بازار سے تھوڑا سا آٹا, دال, تیل اور کچھ اناج کسانوں سے سستے دام میں خریدا. پھر انہیں شہر کے قریبی بازار میں ہلکے منافع پر بیچ دیا. پہلے دن سے کم نفع ہوا مگر سلیم خوش تھا کیونکہ یہ نفع حلال تھا. رات کو جب سلیم واپس آیا تو اس نے مٹھو کے لیے گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا. مٹھو اس سے گزرنے لگا. سلیم ہنسا اور کہا, اب اسے ہم دونوں کی زندگی بدلنے والی ہے, مگر یاد رکھنا مٹھو, ہم کبھی غرور نہیں کریں گے. دوسری طرف شاہزادے نے سلیم کو گھر سے نکال کر سب کا سانس لیا تھا. اسے لگا اب میں آزاد ہوں, میں کسی امیر سے شادی کر لوں گی. لیکن حقیقت شاہزادے کی سوچ سے زیادہ سخت تھی. گاؤں کی عورتیں سے تانے دینے لگی, کیسی عورت ہے, شوہر کو نکال دیا. اور شاہزادے کو جلد احساس ہوا سلیم غریب تھا مگر عزت والا تھا, اور سلیم کے بعد اس کی عزت بھی کم ہونے لگی. چند ہفتوں میں سلیم کی تجارت بڑھنے لگی اور لوگ اس کے اخلاق سے متاثر تھے. وہ کم بولتا مگر جو بولتا سچ بولتا. وہ نفع کم رکھتا مگر چیز خالص دیتا. لوگ کہنے لگے سلیم میں کچھ بات ہے, یہ بندہ بہت صاف دل ہے. اور یوں گاؤں کے بیچ بازار میں سلیم نے ایک چھوٹی سی دکان لے لی. مگر حیرت کی بات یہ تھی, وہ اب بھی رات کو اسی ویران گودام میں جاتا تھا, صرف اپنے مٹھو کے ساتھ. دن گزرتے گئے اور سلیم کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی گئی جو لوگ صرف کہانیوں میں سنتے ہیں. اس کی چھوٹی سی دکان اب بازار میں پہچانی جانے لگی تھی. لوگ اس کے پاس آتے اور کہتے, سلیم بھائی آپ کے پاس چیز بھی خالص ہے اور آپ نفع بھی کم رکھتے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے. سلیم صرف مسکرا دیتا. وہ دل میں سوچتا, یہ سب میرا نہیں, یہ سب اللہ کا ہے. لیکن جہاں روشنی پڑتی ہے وہاں سائے بھی لمبے ہو جاتے ہیں. بازار میں ایک پرانا سوداگر تھا, نام تھا فرید. فرید کئی سالوں سے کاروبار کر رہا تھا اور وہ خود کو بازار کا بادشاہ سمجھتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ سلیم کی دکان پر رش بڑھ رہا ہے تو اس کا خون چلنے لگا. وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا, یہ سلیم کل تک مزدور تھا, آج اتنی جلدی دکاندار کیسے بن گیا؟ ضرور کچھ گڑبڑ ہے. کسی نے کہا, ہو سکتا ہے اسے کہیں خزانہ مل گیا ہو. فرید نے ہنسی میں کہا, خزانہ؟ نہیں, یہ ضرور چوری کرتا ہے یا کسی کو دھوکہ دے رہا ہے. اور یوں بازار میں سلیم بھی میرا سرگوشیاں شروع ہو گئی. ایک دن فرید نے اپنے 2 آدمیوں کو بلایا اور کہا, رات کو سلیم کا پیچھا کرو, دیکھو وہ کہاں جاتا ہے. وہ دونوں رات کو خاموشی سے سلیم کے پیچھے چل پڑے. سلیم دکان بند کر کے بازار سے باہر نکل گیا. مٹھو اس کے ساتھ تھا. چاندنی رات تھی.
सलीम सीधा इसी वीरान गोदाम की तरफ गया। फरीद के आदमी ने दूर से देखा, ये यहाँ क्यों आता है? ये तो वीरान जगह है। उन्होंने गोदाम के बाहर छुपकर झांका। अंदर सलीम ने चिराग जलाया, फिर वसूल किया, नमाज पढ़ने लगा। मिट्टू उसके पास बैठा था। फरीद के आदमी हैरान हो गए। ये तो इबादत कर रहा है। यहाँ ये कहाँ का चोर है? मगर फिर इनमें से एक ने कहा, हो सकता है ये इबादत का ढोंग कर रहा हो। असल में खजाना यहीं छुपा रखा है। और वो दोनों वापस चले गए। अगली सुबह बाजार में फरीद ने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, लोगों, ये सलीम कोई सीधा आदमी नहीं, ये रात को वीरान जगहों पर जाता है, जरूर इसने कहीं से माल चोरी किया है। लोग रुक गए। कुछ ने कहा, नहीं यार, सलीम तो बहुत अच्छा है। मगर कुछ लोग फरीद की बातों में आ गए। सलीम ने ये बातें सुनी तो इसने सिर्फ एक जुमला कहा, जो सच है वो अल्लाह के सामने है, लोगों के सामने नहीं। और वो खामोशी से अपनी दुकान पर लग गया। इसी दिन सलीम की जिंदगी में एक और तूफान आया। दोपहर के वक्त सलीम अपनी दुकान में बैठा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सलीम ने कहा, सामने शाजिया खड़ी थी। इसके चेहरे पर वो गरूर नहीं था जो पहले था। आंखों में आंसू थे और कपड़े भी अब पहले जैसे नहीं थे। शाजी की आवाज़ कांप रही थी, सलीम, मैं गलत थी। सलीम कुछ लम्हे इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? शाजी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें निकाल दिया, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। सलीम के दिल में पुराने जख्म जाग गए। वह लम्हा याद आया जब शाजी ने रोटी ज़मीन पर फेंकी थी, जब उसने कहा था, निकल जाओ। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, शाजिया, तुमने मुझे इस वक्त छोड़ा जब मेरे पास कुछ नहीं था। शाजी ने रोते हुए कहा, मैं नादान थी, मैंने दूसरे आदमी से शादी की और वो अमीर लगता था, मगर इसने मुझे जलील किया और फिर तलाक दे दी। सलीम खामोश रहा। मिट्टू सलीम के पास बैठा था। इसकी आंखें शाजिया पर थी, जैसे समझ रहा हो ये वही है जिसने मेरे मालिक को रुलाया था। शाजी ने हाथ जोड़ कर कहा, मुझे वापस ले लो, मैं बदल गई हूँ। सलीम ने बहुत आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, शाजिया, मैं तुम्हें बेकार नहीं देख सकता, लेकिन मोहब्बत जो तुमने खुद मार दी है, वो मोहब्बत जो तुमने खुद मार दी वो वापस नहीं आएगी। शाजी के आंसू गिरने लगे। सलीम ने कहा, तुम गोदाम के दूसरे हिस्से में रह सकती हो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, छत दूंगा, मगर दिल अब पैसा नहीं रहा। शाजी की सांस रुक गई। वो समझ गई सलीम ने उसे पनाह तो दी मगर मुकाम नहीं। रात को सलीम गोदाम में आया। शाजिया एक कोने में खामोश बैठी थी। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। सलीम ने मिट्टू को खाना दिया। शाजी ने देखा तो आहिस्ते से कहा, ये कुत्ता अब भी तुम्हारे साथ है? सलीम ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि ये वफादार है। शाजी की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं? सलीम ने बस इतना कहा। तुमने वफा नहीं की थी। ये सुनकर शाजी टूट गई। अगली सुबह बाजार में एक और बड़ा वाकया हुआ। फरीद ने एक चाल चली। इसने अपने आदमी से कहा, सलीम की दुकान में चांदी के सिक्के छुपा दो और फिर शोर मचा दो कि चोर है। और ऐसा ही हुआ। दोपहर में लोगों का हजूम सलीम की दुकान के बाहर जमा हो गया। फरीद चीख रहा था, देखो, मैंने कहा था ना कि ये चोर है, ये चांदी के सिक्के चुराता है। लोग अंदर घुस आए। सलीम सख्त रह गया। इसने कहा, ये मेरे नहीं, ये मैंने कभी नहीं देखे। मगर हजूम नहीं मान रहा था। इसी लम्हे मिट्टू अचानक भूंका और वो सीधा फरीद के एक आदमी की तरफ लपका। मिट्टू ने इसकी जेब पकड़ ली। वो आदमी घबरा गया। लोग चीखे, ये क्या कर रहा है? मिट्टू ने जेब को जोर से खींचा और जेब से मजीद सिक्के निकल कर जमीन पर गिर गए। सब लोग सख्त रह गए। सलीम ने कहा, ये सिक्के ये इसी के पास क्यों है? लोगों ने इस आदमी को पकड़ा। इसने पहले इनकार किया मगर जब मार पड़ी तो इसने सच उगल दिया। ये फरीद ने कहा था सलीम को बदनाम कर दो। एक लम्हे में पूरा बाजार खामोश हो गया। लोगों की नजरें फरीद पर थीं। फरीद के चेहरे का रंग उड़ गया। सलीम ने कुछ नहीं किया, बस इतना बोला, अल्लाह सच जाहिर कर देता है और झूठ को रिस्वा कर देता है। बाजार में इस दिन अजीब सन्नाटा था। चांदी के सिक्के जमीन पर बिखरे थे और लोगों के दिलों में शर्मिंदगी। फरीद, जो अभी तक खुद को बाजार का बादशाह समझ रहा था, अब एक आद चोर की तरह सबके सामने खड़ा था। इसके माथे पर पसीना था, आंखें नीची थी और जबान जैसे बंद हो गई थी।
कुछ लोग जो कल तक सलीम को चोर कह रहे थे आज नजरें चुरा रहे थे। एक बूढ़ा खाक आके आया और बोला, सलीम बेटा, हमसे गलती हो गई, हमने तुम पर शक किया। तुम सलीम ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, लोग वही कहते हैं जो इन्हें दिखता है। किसी ने कहा हम फरीद को सज़ा दिलवाएंगे। सलीम ने सर झुका लिया। वो दिल में जानता था सज़ा देने वाला अल्लाह है, इंसान तो बस वसीला है। फरीद के आदमी को लोगों ने पकड़ कर काजी के पास ले जाने का फैसला किया और साथ ही फरीद को भी। फरीद चीखा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। मगर इसके अपने आदमी ने सच बोल दिया। यही मास्टर माइंड है, यही कहता था कि सलीम को बदनाम करो। लोगों ने फरीद को थक्के देकर बाजार के बीचों बीच खड़ा कर दिया। एक नौजवान बोला, यही वो आदमी है जो दूसरों को धोखा देकर अपनी दुकान चलाता था। किसी ने कहा, इसके पास सालों से पैसा है मगर दिल में ईमान नहीं। इस सब के दौरान सलीम खामोश था। लोग हैरान थे, ये क्यों नहीं बोल रहा, ये क्यों नहीं कह रहा कि फरीद को जेल में डालो, ये क्यों नहीं बदला ले रहा। मगर सलीम ने बस इतना कहा, अगर मैं बदला लूंगा तो मेरे दिल में भी वही जहर आ जाएगा जो फरीद के दिल में था। इस दिन लोगों को पहली बार समझ आया, मिट्टू सिर्फ एक कुत्ता नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। लोगों ने मिट्टू को प्यार करना शुरू कर दिया। कोई रोटी देता, कोई दूध। एक बच्चे ने कहा, अम्मी ये कुत्ता तो हीरो है। सलीम ने मुस्कुरा कर बच्चे के सर पर हाथ रखा और दिल में कहा, या अल्लाह, तूने एक बेज़बान के जरिए सच जाहिर कर दिया। गोदाम में शाजिया ये सब देख रही थी। वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो दिल में सोच रही थी, मैंने किस इंसान को टुकड़ा दिया था और किस इंसान के पास वापस आई हूँ। काजी के पास मामला पहुंचा। काजी एक नेक और समझदार आदमी था। इसने दोनों तरफ की बात सुनी। फरीद ने झूठ बोलने की कोशिश की मगर इसके आदमी ने सच बता दिया। काजी ने सख्त लहजे में कहा, फरीद, तुमने ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि एक बेगुनाह इंसान की इज्जत पर हाथ डाला। फरीद ने कांपते हुए कहा, काजी साहब, मुझे माफ कर दें। काजी ने फैसला सुनाया, फरीद को बाजार में माफी मांगनी होगी और सलीम को 50 सोने के सिक्के बतौर हर्जाना देने होंगे, और अगर वो ना दे सका तो इसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। फरीद के पांव तले जमीन निकल गई। फरीद के पास सोने के सिक्के थे मगर इसके दिल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सलीम के सामने शर्मिंदा हो। वो सलीम के पास आया और हिचकिचाते हुए बोला, सलीम, ये ले लो, मैंने गलती की। सलीम ने सिक्के देने से पहले इसकी आंखों में देखा और कहा, फरीद, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम आइंदा किसी भी गुनाह की इज्जत का हाथ ना उठाओ। फरीद ने सर झुका लिया। इस दिन के बाद बाजार में फरीद की इज्जत खत्म हो गई। लोग उसकी दुकान पर आना कम कर गए और जो आते भी वो भी शक की निगाह से देखते। फरीद अंदर से टूट गया। वो सोचता, मैंने तो बस हसद किया था, मैंने तो बस अपना फ़ायदा चाहा था, मगर अब इसका नुकसान शुरू हो चुका है। अभी सब कुछ ठीक हो रहा था कि एक रात सलीम की गोदाम पे बारिश शुरू हुआ। सलीम बाहर निकला तो देखा कुछ आवारा लड़के मिट्टू को पत्थर मार रहे थे। सलीम चीखा, रुको, ये क्या कर रहे हो? एक लड़का बोला, ये कुत्ता बाजार में भूंगता है, हमें तंग करता है। सलीम ने गुस्से में कहा, ये बेज़बान है, इसे क्यों तकलीफ देते हो? लड़के हंसे और एक ने बड़ा पत्थर उठाया। मिट्टू पीछे हटा और दर्द से कहने लगा। सलीम का दिल हल गया। वो दौड़ कर मिट्टू के पास गया और इसे गोद में उठा लिया। मिट्टू के पाँव से खून निकल रहा था। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वो लरसती आवाज में बोला, या अल्लाह, यही तो मेरा साथी है। शाजिया अंदर से निकली। इसने मिट्टू को जख्मी देखा तो इसकी आंखें भर आई। वो घुटनों के बल बैठ गई और पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किया था। सलीम ने इसे देखा, कहा, अगर तुम वाकई बदल गई हो तो ये वक्त है। शाजिया ने मिट्टू के सर पे हाथ रखा और रोते हुए कहा, मैं इसकी खिदमत करूंगी, मैं इसकी मरहम पट्टी करूंगी। इसी रात सलीम ने मिट्टू को आराम दिया और खुद खामोशी से गोदाम के कोने में बैठकर दुआ करने लगा। वो बोला, या अल्लाह, तूने मुझे इज्जत दी, तूने मुझे रिस्क दिया, तूने मुझे सच दिखाया, बस मेरे मिट्टू को शफा दे दे। और फिर सलीम को वही ख्वाब आया जो उसने पहली बार देखा था। ख्वाब में एक नूरानी आवाज आई, सलीम, तूने नेकी की है, तूने सब्र किया, तूने वफा की, अब अल्लाह तुझे ऐसा बता देगा जो तूने सोचा भी नहीं। सलीम की आँख खुल गई, इसका दिल कांप रहा था। सुबह हुई। सलीम ने मिट्टू को देखा। मिट्टू खड़ा था। वो लंगड़ा जरूर हो रहा था मगर
जिंदा था। आंखों में वही वफाती। सलीम की आंखों से आंसू निकल आए। वो मिट्टू के गले लग गया और कहा, तूने मेरा साथ दिया, अल्लाह तुझे सलामत रखे। सुबह की रोशनी गोदाम के टूटे हुए दरीचों से अंदर आ रही थी। सलीम ने मिट्टू को अपने सामने खड़ा देखा तो इसका दिल जैसे शुक्र से भर गया। मिट्टू हल्का सा लंगड़ा रहा था मगर इसकी आंखों में वही वफा थी। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह तो वाकई सुन लेता है। शाजिया चुपचाप अंदर आई। इसके हाथ में साफ कपड़ा, मैला और थोड़ा सा पानी था। सलीम ने इसे देखा और पहली बार महसूस किया कि शाजिया वो नहीं रही जो कभी गरूर से बोलती थी। शाजिया ने मिट्टू के जख्म पर नरमी से मरहम लगाया। मिट्टू ने पहले थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश की मगर फिर जैसे समझ लिया ये अब दुश्मन नहीं, ये अब शर्मिंदा है। शाजिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कांपती आवाज़ में बोली, सलीम मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की, मैंने तुम्हारी रोटी की कदर नहीं की। सलीम खामोश रहा। शाजिया ने अपना सर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ ही चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सलीम ने आहिस्ता से कहा, शाजिया अल्लाह माफ़ करने वाला है। फिर थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन इंसान का दिल वो आसानी से नहीं जुड़ता। शाजिया ने हाँ मैं सर हिलाया। मैं जानती हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। ये सुनकर सलीम के दिल में पहली बार शाजिया के लिए नफरत कम हुई। इसी दिन सलीम दुकान पर गया। लोगों का रवैया बदल चुका था। अब लोग सलीम को सिर्फ दुकानदार नहीं बल्कि एक नेक इंसान समझते थे। ये बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास पैसे कम है, क्या तुम कुछ सस्ता दे सकते हो? सलीम ने फौरन कहा, माँ जी आप पैसे मत दें, ये ले जाएं। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अल्लाह तुम्हें वो दे जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, आमीन। लेकिन फरीद का दिल अभी भी चल रहा था। वो रिस्वा हो चुका था मगर हसद खत्म नहीं हुआ था। इसने सोचा, मैंने सलीम को बदनाम करने की कोशिश की, नाकाम रहा, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। फरीद ने अपने एक पुराने दोस्त को बुलाया। वो शहर का बड़ा चोर था, नाम था साजिद। फरीद ने कहा, रात को सलीम के गोदाम में चोरी करो और इसका माल उठा लो। साजिद ने हंसते हुए कहा, आसान है, वो गरीब आदमी है। फरीद ने दांत पिसते हुए कहा, गरीब नहीं, ये किस्मत वाला है। रात हुई। सलीम दुकान बंद करके गोदाम आया। मिट्टू दरवाजे के पास बैठ गया। शाजिया अंदर खामोश बैठी थी। सलीम ने खाना खाया और फिर नमाज पढ़ने लगा। मिट्टू की आंखें बाहर थी। इसी रात साजिद और इसके दो आदमी खामोशी से गोदाम के करीब आए। आहिस्ता से दरवाजा तोड़ने लगे। मिट्टू ने फौरन रोकना शुरू किया। भाओ भाओ। सलीम की नमाज टूट गई। वो बाहर निकला। साजिद ने मिट्टू को डराने के लिए पत्थर उठाया। मिट्टू पीछे नहीं हटा, वो सीधा इनके सामने खड़ा रहा। सलीम ने चीख कर कहा, कौन हो तुम? साजिद ने गाली दी और अंदर घुसने की कोशिश की। मिट्टू अचानक साजिद पर झपटा। साजिद चीखा, ओए ये कुत्ता पागल है। मिट्टू ने इसके हाथ पे पकड़ा हुआ हथियार गिरा दिया। सलीम ने फौरन लकड़ी उठाई और साजिद के एक आदमी को मारा। शाजिया भी बाहर आ गई। वो डर तो रही थी मगर फिर इसने देखा सलीम की जान खतरे में है। शाजिया ने जमीन से पत्थर उठाया और साजिद के दूसरे आदमी के सर पर मार दिया। वो चीख कर गिर गया। सलीम ने हैरान होकर शाजिया को देखा। शाजिया की आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। वो बोली, मैं दोबारा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सलीम का दिल लरस गया। इसी वक्त पड़ोसियों ने शोर सुना और दौड़ कर आए। किसी ने पुलिस को बुला लिया। चोर भागने लगे मगर लोग इन्हें पकड़ चुके थे। साजिद को भी पकड़ लिया गया। वो चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मगर मिट्टू ने इसकी टांग पकड़ रखी थी। पुलिस आई और सबको ले गई। पुलिस ने साजिद से पूछा, किसने भेजा था? साजिद पहले नहीं बोला मगर जब पुलिस ने सख्ती की तो वो चीख पड़ा, फरीद। फरीद ने कहा था कि सलीम का माल लूट लो। ये सुनकर पुलिस ने फरीद को भी बुलाया। फरीद को थाने में लाया गया। वो कांप रहा था। काजी ने दोबारा फैसला सुनाया है। इस बार काजी का चेहरा सख्त था। इसने कहा, फरीद तुमने पिछली बार भी झूठ बोला और अब चोरी करवाई। तुम्हारी दुकान बंद, तुम्हें शहर से निकाला जाएगा। फरीद चीखा, नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। काजी ने कहा, तुमने दूसरे की इज्जत खत्म करने की कोशिश की थी, अब तुम्हारी बारी है। चंद दिन बाद शहर में एक बड़ा ताजिर आया। वो बाहर के मुल्क से था। इसने बाजार के लोगों से पूछा, यहाँ सबसे ईमानदार दुकानदार कौन है? लोगों ने एक ही का नाम लिया, सलीम। ताजिर सलीम की दुकान पर आया। सलीम ने एहतराम से कहा, जी जनाब, क्या चाहिए? ताजिर ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने माल वापस किया। तुमने जुर्म नहीं किया, तुमने दुश्मन को भी माफ किया। सलीम हैरान रह गया। ताजिर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करो। मैं तुम्हें अपना बिजनेस सिखाऊंगा, तुम्हें शहर का सबसे बड़ा ताजिर बना दूँ।
सलीम की आंखें भर आई। वो बोला, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ। ताजिर मुस्कुराया, गरीब नहीं, तुम अमीर दिल वाले हो। खुदा में शाहजे ने ये बात सुनी तो इसने सलीम के सामने हाथ जोड़कर कहा, सलीम, ये सब तुम्हारी नेकी का बदला है। फिर वो रोने लगी, और मैंने तो तुम्हें छोड़कर अपनी जिंदगी तबाह की। सलीम ने आहिस्ते से कहा, शाजिया, अल्लाह ने तुम्हें भी मौका दिया है। शाजिया ने कहा, मैं वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हारी इज्जत करूँगी और अल्लाह के लिए तुम्हारी खिदमत करूँगी। सलीम के दिल में अभी खौफ था कि ये वाकई बदल गई है या ये सिर्फ मजबूरी है, मगर फिर इसने सोचा, अगर अल्लाह ने मुझे माफ़ किया तो मैं क्यों ना कोशिश करूँ। सलीम की ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। वही सलीम जो कभी एक पुराने से झोंपड़ी में टूटे हुए दिल के साथ बैठा था, आज पूरे बाजार में ईमानदारी की मिसाल बन चुका है। लोग इसकी दुकान पर आते तो सिर्फ सौदा नहीं खरीदते, वो इसके खिलाफ खरीदते थे, इसकी सच्चाई खरीदते थे, इसका सब्र खरीदते थे। और सलीम दिल में हमेशा कहता था, या अल्लाह, ये सब तेरा करम है। वो बड़ा ताजिर सलीम को अपने साथ ले गया। सलीम ने पहली बार बड़े बड़े गोदाम देखे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े हिसाब, मगर सलीम के दिल में गरूर नहीं आया। वो हर सौदा करते वक्त पहले अल्लाह का नाम लेता। ताजिर इसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर था। वो एक दिन बोला, सलीम, मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे मगर तुम जैसा इंसान नहीं देखा। तुम्हें दौलत नहीं बरकत मिली है। सलीम की आंखें नम हो गई। चंद महीनों में सलीम ने अपनी कमाई से एक छोटा सा मगर साफ सुथरा घर दिया। वो घर कोई महल नहीं था, मगर सलीम के लिए जन्नत से कम नहीं था। वो घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले कहा, या अल्लाह, ये घर मेरे लिए नहीं, ये तेरी नेमत है। मिट्टू खुशी से दौड़ रहा था। शाजिया खामोश थी। वो घर को देख रही थी और अंदर से टूट रही थी। एक रात सलीम नमाज के बाद बैठा था। शाजिया आहिस्ता से इसके पास आई। इसके हाथ में चाय थी। वो कांपती आवाज़ में बोली, सलीम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? सलीम ने सर हिलाया। शाजिया ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर सिर्फ अपनी दुनिया देखी। मैंने तुम्हारे सब्र को कमजोरी समझा। मैंने तुम्हारी रोटी को बेइज्जत दी, पर मैंने तुम्हारी मोहब्बत को मामूली समझा। वो रोने लगी। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आने की हत्या नहीं। सलीम खामोश रहा। शाजिया ने कहा, मैं तुमसे एक चीज़ मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, सिर्फ अल्लाह के लिए। सलीम ने गहरी सांस ली। इसकी आंखों के सामने वो सारे दिन आ गए जब वो भूखा सोया था, जब इसने एक एक रुपया जोड़ा था, जब शाजिया ने इस पर तंज किया था और जब इसने रोटी जमीन पर फेंकी थी। सलीम की आवाज़ भारी हो गई, शाजिया, माफ़ी मैं दे दूंगा। शाजिया की आंखों में उम्मीद जाग गई, मगर सलीम ने आगे कहा, लेकिन वापस वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो तुमने खुद ख़त्म की। शाजिया का चेहरा जब्त हो गया। सलीम ने कहा, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, मैं तुम्हें हिफाजत दूंगा, मगर मैं अपने दिल को ज़बरदस्ती नहीं झुका सकता। शाजिया रो रही थी, मगर इसने सर झुका लिया। मैं समझ गई। फिर वो आहिस्ता से बोली, सलीम, तुमने मुझे माफ़ करके मुझे जिंदा कर दिया। दिन गुजरते गए। मिट्टू बूढ़ा होने लगा। इसकी चाल आहिस्ता हो गई। एक दिन सलीम घर की सहन में बैठा था कि मिट्टू आहिस्ता आहिस्ता आया और सलीम के कदमों में सर रख दिया। सलीम ने उसे प्यार किया और कहा, तूने मेरी जिंदगी बचाई। शाजिया भी करीब आ गई। इसने मिट्टू को पानी पिलाया। मिट्टू ने इसकी तरफ देखा। पहली बार इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस सुकून था। मिट्टू की आखिरी रात। एक रात मिट्टू ने खाना नहीं खाया। सलीम ने इसे आवाज़ दी, मिट्टू खा ले। मिट्टू ने बस सलीम को देखा और फिर आहिस्ता से इसके हाथ को चाटा। सलीम के दिल को झटका लगा। वो समझ गया ये वफा करने वाला तो सब जाने वाला है। सलीम की आंखें बाहर आई। वो मिट्टू को गोद में लेकर रो पड़ा, या अल्लाह, इसने मेरे साथ वफा की तो इस पर रहम फरमा। शाजिया भी रो रही थी। सुबह हुई। सलीम ने मिट्टू को देखा। वो खामोश था। इसकी सांस बंद हो चुकी थी। सलीम के हाथ कांप गए। वो मिट्टू के पास बैठ गया और देर तक इसे देखता रहा। फिर इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह,
तूने इसे मेरे लिए भेजा था और तूने इसे वापस दे दिया। सलीम ने मिट्टू को घर के पास एक छोटे से दरख्त के नीचे दफन किया, वहीं जहां मिट्टू अक्सर बैठकर सलीम का इंतजार करता था। सलीम ने मिट्टू की कब्र पर पानी डाला और कहा, तो मेरे लिए सबक था, वफा का, सब्र का और नेकी का। कुछ दिन बाद सलीम ने अपने कारोबार से एक बड़ा फैसला किया। इसने शहर में गरीबों के लिए एक छोटा सा दस्तरखान शुरू किया। रोजाना लोग आते, खाना खाते और दुआ देते। सलीम कहता, ये सब मिट्टू की वजह से है। लोग हैरान होते। कुत्ता? सलीम मुस्कुरा कर कहता, हाँ, अल्लाह ने ये बेज़बान के जरिए मुझे इंसानियत सिखाई। शाजिया वाकई बदल चुकी थी। वो सलीम के दस्तरखान में काम करती, गरीब औरतों की मदद करती और हर नमाज का नजर होकर कहती, या अल्लाह मुझे दोबारा गरूर न देना। एक दिन शाजिया ने सलीम से कहा, मैं चाहती हूँ मैं किसी यतीम बच्ची की जिम्मेदारी उठाऊं। सलीम ने इसे देखा और पहली बार दिल से कहा, शायद ये वाकई बदल गई है। सलीम ने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, इज्जत, रिज़्क, सुकून, लोगों के मोहब्बत, अल्लाह की रजा। मगर सबसे बड़ा बदला ये था, इसका दिल साफ रहा। वो न फरीद जैसा हसद में जला, न शाजिया जैसा गरूर में गिरा। वो बस अल्लाह पर भरोसा करता रहा। सलीम ने एक दिन लोगों से कहा, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती और ईमानदारी कभी कमज़ोर नहीं होती। लोग कुछ भी कहें, अल्लाह सच को बरकत देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और कमेंट में लिखें, ईमानदारी जीत गई। जज़ाकल्लाह।